بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں EPF پاکستان۔ آج ادرک کی فارمنگ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں شہرت پانے والی ادرک جسے اصل میں ٹارچ جنجر کہتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ کاشتکاروں کو مزید نقصان نہ ہو۔ اس کا اصل نام الیٹیور ہے۔ ٹارچ جنجر کا تعلق اگرچہ ادرک کے خاندان زنجبرایسیئے سے ہے، یہ انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ملیشیا وغیرہ جیسے ممالک میں پائی جاتی ہے اور پاکستان میں چند سالوں سے شہرت حاصل کرنے لگی ہے۔ یہاں پر اس کی شہرت کی وجہ پاکستان کے موسم کے حساب سے اس کو کم حفاظت درکار ٹارچ جنجر کا استعمال۔ اپنے آبائی علاقوں میں اسے بطور ادرک کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، البتہ اس کے پھول خوردنی اور ادویاتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھولوں کو سلاد، چٹنیوں وغیرہ میں بطور فلیور استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ادرک کا ذائقہ عام ادرک سے بہت مختلف ہے، بلکہ ٹارچ جنجر چبانے کے بعد آپ دوسری ادرک کو کھائیں تو ذائقہ صحیح محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اسے نمائشی طور پر باغیچوں میں اگایا جاتا ہے اور تنوں، پتوں اور پھول سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے جو ادویاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹارچ جنجر کی ادویاتی خصوصیات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں زخموں کو ٹھیک کرنے، کان کے درد اور پسینے کی بدبو دور کرنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو گھروں میں لگانے میں کوئی برائی نہیں ہے، البتہ بطور فصل لگانا کاشتکاروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اب ادرک کی کاشت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ ادرک جسے عام زبان میں جنجر اور اس کا سائنسی نام زنجبر افیشنالی ہے، جیسا کہ ادرک کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہر گھر میں روزانہ استعمال ہوتی ہے۔ ادرک کی فارمنگ کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے اور بہت سارا زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے اس کی فارمنگ کر کے۔ ادرک کی فارمنگ کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی میں کئی سالوں سے ریسرچ ہو رہی ہے اور فیصل آباد یونیورسٹی میں پودے ٹیشو کلچر سے تیار کر کے دیے جاتے ہیں تاکہ کسانوں کو ادرک کی فارمنگ کی طرف توجہ دلائی جا سکے، اور اس کے علاوہ باقی جو انفارمیشن ہے وہ بھی دی جاتی ہے۔ تو موسمی تقاضے: ادرک بنیادی طور پر گرم مرطوب علاقے کی فصل ہے۔ اس فصل کے لیے موزوں درجہ حرارت 15 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور 4 سے 5 گھنٹے سورج کی روشنی اور پھر سایہ دار حفاظت۔ سخت گرمی سے بچانے کے لیے اور نمی برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پانی کی فراہمی ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت جو اس کے لیے قابل برداشت ہے وہ ہے 10 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ پودا زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن علاقوں میں 1500 ملی لیٹر بارشیں ہوتی ہیں وہ علاقے اس کے لیے موزوں ہیں۔ جرمنیشن کے دوران درجہ حرارت 30 سے 35 ڈگری درکار ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان میں قدرتی طور پر ایسا موسم نہیں ہے جہاں پہ اس کو کاشت کیا جا سکے، لیکن مصنوعی طریقے سے اس کی یہ ضروریات پوری کر کے، یعنی ٹنل فارمنگ کے ذریعے اور شاورنگ ٹیکنیک کے ذریعے نوزل لگا کے بارشوں کی ضرورت، اس کی نمی کی ضرورت یا ڈرپ ایریگیشن کی مدد سے وہ تمام ضروریات پوری کر کے اس کی فارمنگ کی جا سکتی ہے۔ مٹی کیسی ہونی چاہیے؟ ادرک کا پودا نامیاتی مادوں سے بھرپور سینڈی لوم سائل اور
लूमी साइल को पसंद करता है। यहाँ पर निकासी आप को यकीनी हो और pH लेवल 6 से 8 तक हो। नरम मिट्टी जहाँ पर जड़ें तेज़ी से बढ़ें और खुराक ज़ख़ीरा कर ले। ऐसी जगह जहाँ पर गुज़िश्ता साल अदरक लगाई गई हो वहाँ पर लगाने से गुरेज की जाती है। काश्त का वक्त मई से जून में ताज़ा बीज जो बीमारियों से पाक हो, जिसे ये गांठ, इसको रेजिमी कहते हैं, इस गांठ के ऊपर 3 कम से कम आँखें होनी चाहिए और ये जो है लगाई जा सकती है। अलबत्ता इसके पौधे आपको फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में टिश्यू कल्चर की सूरत में मिल सकते हैं। 1 एकड़ में लगाने के लिए 480 से 720 किलो बीज दरकार होता है। लगाने के से पहले इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। किसी फंगीसाइड इसके अंदर डाल के उसके ऊपर से डुबो के रखना चाहिए और फिर इसको खुश्क जगह पे रख दिया जाए ताकि इसकी जो ये कटी हुई गांठें हैं ये मुंतमिल हो जाएं और इसके ऊपर फंगस का हमला ना हो। आमतौर पर इसको नमी वाली रेत में दबा दिया जाता है और ताकि इसके अंदर से पोंपलें निकल आएँ और फिर इसको जिस जगह पे लगाना हो वहाँ पे बेड्स बना के लगाया जा सकता है। अगर डायरेक्ट लगाया जाए तो उसमें नागे बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पौधों का दरमियानी फासला, रो से रो फासला 6 से 8 इंच 1 फीट भी रखा जा सकता है और पौधे से पौधे का फासला 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट के रखें। बीज की गहराई आप 1 से 2 इंच रख सकते हैं, लेकिन बाद में उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते जाएंगे तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। चाइना में नालियाँ बनाकर और उसमें लगाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मिट्टी बढ़ाते जाते हैं और इसकी जो है ग्रोथ जड़ों की ज़्यादा बेहतर होती जाती है। पानी की ज़रूरत, अदरक बारिशी इलाकों में काश्त होने वाली फसल है, इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन फ्लड एरीगेशन से इसके ऊपर ख़तरा ये होता है कि फंगस आ जाए, इसलिए नोज़ल इस्तेमाल की जाती है और इसके साथ साथ नमी को बरकरार रखने के लिए मल्चिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं और हस्बे ज़रूरत ड्रिप एरीगेशन से या नोज़ल की मदद से स्प्रे करके इसकी ज़रूरत पूरी की जा सकती है, क्योंकि इस फसल को कम से कम 70% हवा में नमी चाहिए होती है और 50% तक भी एक काबिल बर्दाश्त है। इसके लिए नोज़ल का इस्तेमाल करके हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ाया जा सकता है, तब जाके इसकी ये ज़रूरियात पूरी हो सकती है। ज़मीन के अलावा इसको कोकोपीट यानी नारियल के बुरादे में भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी खादों की ज़रूरियात और पानी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के ड्रिप एरीगेशन की मदद से ये इसके ऊपर पाकिस्तान में भी काम हो रहा है। अच्छा, खादों का इस्तेमाल, खेत की तैयारी के वक्त गोबर की खाद 150 क्विंटल फ़ी एकड़ के हिसाब से NPK 25-10-10 के हिसाब पर केजी के हिसाब से फ़ी एकड़ डालनी चाहिए। फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट और का चार्ट आप और इसकी डिटेल इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसकी भी चार्ट और तफसील आपको नज़र आ रही है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह शामिल हैं। इस मतलूबा मिक़दार के मुताबिक जो पर एकड़ के हिसाब से यहाँ पे दिखाई गई है उसी के हिसाब से डाल लेनी चाहिए। इसके अलावा बीमारियों के बारे में बात करें, अदरक की बीमारियों में रूट रॉट शामिल है। इसके ट्रीटमेंट के लिए फंगीसाइड स्प्रे 3 दफ़ा करना चाहिए। बैक्टीरियल विल्ट के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। बी लाइट एंड लीफ स्पॉट की अलामात ज़ाहिर होने पर मैनकोज़िब का स्प्रे करें। रेजिमी फ्लाई की सूरत में आप एसीफेट का स्प्रे करें
15 दिन के वक्फे के बाद शूट बोरर के अलामत नज़र आएँ तो डाई मैथोएट का स्प्रे करें। किंग पेस्ट की सूरत में एज़ा डायरेक्टिन का स्प्रे करें। फसल की तैयारी, ये फसल 8 से 10 माह में तैयार होती है। सही वक्त का अंदाज़ा पत्तों के पीला होकर खुश्क होने से लगाया जा सकता है। ज़मीन से अदरक निकाल कर 2 से 3 मरतबा धो लें और साया में खुश्क होने के लिए रख लें और फिर मार्केट में इसको आसानी से फ़रोख्त किया जा सकता है। पाकिस्तान के जिन इलाकों में दर्जा हरारत दिसंबर और जनवरी में 10 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, जैसे वादी सून वगैरह, वहाँ पर इसको काश्त करना मौजू नहीं रहेगा। अगर वहाँ पे भी करना चाहें तो इसके लिए टनल, पॉलीथीन का टनल बनाना ज़रूरी होगा ताकि इसको सर्दी से बचाया जा सके और इसके ऊपर फालतू अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इसकी जो नतीजा निकलता है वो ये है कि इस फसल को पहली दफ़ा अगर आप लगाएंगे तो आपको इतनी आमदन होगी कि जिसके मदद से आपके जो अखराजात हैं वो पूरी हो सकें। क्योंकि टनल के लिए ग्रीन नेट और बेहतर ये होता है कि ब्लैक नेट इस्तेमाल की जाए। उसके अलावा उसके फ्रेम्स वगैरह के अखराजात, बीज के अखराजात, जैसा कि मार्केट से मिलने वाला बीज जर्मिनेशन से रोकने के लिए इसके ऊपर तेज़ाब, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आम मार्केट से लिया गया बीज की जर्मिनेशन रेट कम रहता है, तो बीज भी मंगवाने के अखराजात होते हैं। तो इसलिए ये उन काश्तकारों के लिए मौजू रहेगा जिनके पास फालतू अखराजात हों। जो टोटली ज़राअत के ऊपर इन्हिसार करने वाले लोग हैं उनको इसके अगर काश्त करनी हो तो थोड़े पैमाने पे करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर इसके ऊपर मुकम्मल इन्हिसार करना हो तो ग्रीन शेड या 50% ब्लैक शेड को इस्तेमाल करते हुए टनल बना के बाहर करेला वगैरह या इस तरह की फसलें लगाई जाएं ताकि दर्जा हरारत भी बरकरार रहे और आपके जो सालाना अखराजात हैं वो उसमें से कुछ हद तक निकल जाएं।